மக்களவையில் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி பேசி வருகிறார். அதனை பார்க்கலாம். Speaker sir, thank you for allowing me to speak on the President's address. It's an honor for me to be able to speak at this house today. குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தில் பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்ததற்காக நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். हम भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम पैदल चले. கடந்த 4 மாதங்களில் நான் இந்திய ஒற்றுமை யாத்திரை கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரை நடத்தினேன். और इस यात्रा पे 3600 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள யாத்திரை. இந்த யாத்திரையில் நான் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. इस यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिला और जो जनता की आवाज, हिंदुस्तान की आवाज है, उसको गहराई से सुनने का मौका मिला. இந்த நாட்டின் குரல், இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்ற அவர்களுடைய குரலை ஆழமாக கேட்பதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. मैंने सोचा था कि 3500 किलोमीटर चलने हैं और मुश्किल है मगर किया जा सकता है. யாத்திரையின் தொடக்கத்தில் 3500 கிலோமீட்டர் தூரம் இழந்தாலும் செய்து விடலாம் என்று நான் நினைத்தேன். सेवक कह लीजिए. और नॉर्मली आजकल की राजनीति में जो हमारी पुराना ट्रेडिशन था पैदल चलने का, वो आजकल हम सब लोग, हम भी आप भी, उस ट्रेडिशन को शायद भूल गए या उसका हम पालन नहीं करते. இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலையில் நம்முடைய பழைய நடவடிக்கையான யாத்திரை செல்வது என்பதை நாம் மறந்துவிட்டோம். मगर पैदल कम चलते हैं. காரில் செல்வர், சிலர் ஹெலிகாப்டரில் செல்வர், ஆனால் நடந்து செல்வது என்பது முழுவதுமாக இல்லை. जब पैदल चला जाता है, हाँ पैदल जाएंगे, सब जगह पैदल जाएंगे, घबराइए मत. तो जब पैदल चला जाता है, मैं 1 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, 10 की नहीं कर रहा हूं, 25 की नहीं कर रहा हूं, मैं 200-300-400 किलोमीटर की बात कर रहा हूं. जब 200-300-400 किलोमीटर चला जाता है तो शरीर पे दबाव पड़ता है, दर्द होता है, मुश्किल. யாத்திரையின் போது 200-300 கிலோமீட்டர் நடந்த பிறகு நம்முடைய உடலிலே ஒரு களைப்பு ஏற்படுகிறது, அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. चलते वक्त लोगों की आवाज सुन रहे थे हम, मगर हमारे दिल में यह भी था कि हम भी अपनी बात रखें. कोई हमारे पास आता था, कहता था कि मैं बेरोजगार हूं, और हमें लगता था कि नहीं, हमें कहना चाहिए कि तुम बेरोजगार क्यों हो, कारण क्या है. उसमें தொடக்கத்தில் हम विपक्ष का रोल भी प्ले பலர் என்னிடத்திலே வந்து அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்வார்கள். ஒருவர் நான் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவார். அப்போது எனக்கு நீ ஏன் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாய் என்று காரணத்தை அவரிடத்திலே சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றும். और जो हमारी आवाज थी
जो ये डिजायर था बोलने का कि भैया बेरोजगारी इसलिए है, महंगाई इसलिए है, वो बिल्कुल बंद हो गई कि हमने इतने लोगों से बात की। சிறிது தூரம் मतलब சிறிது हजारों தூரம் लोगों से நடந்த बात பிறகு की, बच्चों से, எனக்கு அவர்களிடத்திலே बुजुर्गों வேலை से, இல்லாமல் महिलाओं से, போனதற்கு माताओं காரணம் से, என்ன, बहनों से। விலைவாசி थोड़ी உயர்வுக்கு देर बाद காரணம் ये என்ன बिल्कुल आवाज बंद हो गई என்று சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்படுவது நின்று போனது। और मैं खुल के कह सकता हूं, मैंने तो अपनी जिंदगी में इस प्रकार से कभी पहले सुना ही नहीं था, क्योंकि हम सब में थोड़ा सा अहंकार होता है कि हम ही बता दें, अपनी बात रखते। तो आस्ते आस्ते जब हम चले 500-600 किलोमीटर बाद जनता की आवाज गहराई से सुनाई देने लगी और एक प्रकार से यात्रा, इंडिविजुअल्स नहीं, यात्रा हमसे बोलने लगी। नहीं, गहरी बात। 500-600 கிலோமீட்டருக்கு பிறகு மக்களின் குரல் மிக ஆழமாக எனக்கு கேட்க ஆரம்பித்தது। ஒரு வகையில் இது தனிப்பட்டவரின் யாத்திரை அல்ல, யாத்திரைக்கே ஒரு நல்ல அனுபவமாக இது இருந்திருக்கும்। तो यात्रा बोलने लगी। कोई आता था, कहता था, युवक आता था, कहता था मैं बेरोजगार हूं। हम सवाल पूछते थे, क्या पढ़ा आपने, इंजीनियरिंग की, अब क्या करते हो? कोई कहता था मैं बेरोजगार हूं, कोई कहता था मैं उबर चलाता हूं, कोई कहता था मैं मजदूरी करता हूं। किसान आए हजारों। ஒரு இளைஞர் ஒருவர், நான் இன்ஜினியரிங் படித்திருக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு வேலை இல்லை, प्रधानमंत्री बीमा योजना சும்மா இருக்கிறேன் என்று சொல்வார்। कि हम पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, पैसा गायब हो जाता है। किसानों ने यह भी कहा कि हमारी जमीन छीन ली जाती है, हमें सही रेट नहीं मिलता। जमीन अधिग्रहण புரியானவர் வருவார், அவர் நான் என் வயலிலே உழைத்தேன், ஆனால் பெருமழை பெய்தது, புயல் வந்தது, அதனாலே எனக்கு விளைச்சல் கிடைக்கவில்லை என்று கூறுவார்। விளைந்தால் எனக்கு அதற்கான விலை கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லுவார், என் நிலம் அபகரிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லுவார்। இதை போல பல விஷயங்கள் எனக்கு நான் கேட்க நேர்ந்தது। बेरोजगारी, महंगाई और किसान, उसमें एमएसपी थी, उसमें बीज की समस्या थी, किसान बिल की समस्या थी। अच्छा, अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का துன்பங்களில் जो 4 बजे दौड़ता है, இளைஞர்களின் வேலை வாய்ப்பின்மை, விவசாயிகளுக்கு உரிய பலன் கிடைக்கவில்லை போன்ற பல செய்திகள் இந்த யாத்திரையின் போது எனக்கு தெரிந்தது। அதே போல अग्निवीर பற்றியும் நீங்கள் பேசினீர்கள்। अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा, அக்னி வீரர்கள் என்னிடத்திலே சொன்னார்கள், முன்பெல்லாம் நாங்கள் 15 வருடம் வேலை செய்வோம், எங்களுக்கு ராணுவத்தில் பென்ஷன் கிடைத்தது, இப்போது 4 வருடத்தில் வெளியேறுகிறோம், பென்ஷன் கிடைக்காது என்று கூறினார்கள்। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं।
बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। ராணுவத்திலிருந்து ஓய்வு तो उनके பெற்ற मन में था பல कि ये பெரிய जो அதிகாரிகள் என்னிடத்தில் கூறினார்கள், ராகுல் அவர்களே, நாம் இளைஞர்களை ராணுவத்தில் சேர்த்து அவர்களுக்கு ஆழ்ந்த பயிற்சி பெறுகிறோம், பிறகு சில வருடங்கள் கழித்து அவர்களை மீண்டும் சமுதாயத்தில் விடுகிறோம், இவர்கள் சமுதாயத்திலே வன்முறை ஏற்படுவதற்கு காரணமாக இருப்பார்கள் என்று கூறினார்கள். बिल्कुल ले सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी है वो, क्यों नहीं ले सकते? क्या बात कर रहे हो? सर ये तर्क है, बाद में फिर अडानी के लिए भी यही बोलने वाले हैं, फिर ये तर्क है इनका। तो इंटरेस्टिंग बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फिर प्रेसिडेंट्स एड्रेस पढ़ा। देश के सब युवा अग्निवीर 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 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आर्मी के ऊपर थोपा गया है, हमें नहीं चाहिए। आर्मी के लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आर्मी को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर थोपा है, आरएसएस ने ये उनके ऊपर थोपा है। तो ये आवाजें आ रही हैं। अब मैंने आपका बैठिए, अब बैठिए, तो एक फर्क, ये थोड़ा पानी ले आओगे, मैंने पानी, हाँ। तो मुझे एक फर्क दिखा प्रेसिडेंट्स एड्रेस में बहुत सारी चीजें बोली गई। अग्निवीर के लिए एक लाइन थी, एक शब्द, एक बार अग्निवीर शब्द का प्रयोग किया गया, और वो भी अग्निवीर योजना हमने दी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। कहां से आई, कौन लाया, किसको फायदा होगा, ये नहीं बोला। அக்னிவீர் திட்டம் ஹோம் மினிஸ்ட்ரியால் எங்கள் மீது திணிக்கப்பட்டது, ஆர்எஸ்எஸ் எங்கள் மீது திணிக்கப்பட்டது என்று பலர் கூறுகிறார்கள். இளைஞர்கள் கூறுகிறார்கள், முன்னாள் ராணுவ அதிகாரிகள் கூறுகிறார்கள். ஆனால் ஜனாதிபதி உரையில் அக்னிவீரர்கள் பற்றி ஒரே ஒரு முறை அந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டது. அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன என்பதை பற்றி விவாதிக்கவில்லை. तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जनता कुछ कह रही है और प्रेसिडेंट्स एड्रेस में कुछ और सुनाई दे रहा है। மக்கள் எல்லாம் வேறு எதையோ பற்றி பேசுகிறார்கள், ஆனால் குடியரசுத் தலைவர் உரையில் அதையெல்லாம் இடம்பெறவில்லை என்பது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह கேரளா, தமிழ்நாடு, கர்நாடகம், மகாராஷ்டிரா, காஷ்மீர் போன்ற எல்லா இடத்திலும் ஒரே ஒரு பெயர் மட்டும் எனக்கு கேட்டது, அது அதானி அதானி अदानी इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे, तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे यह सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ, எந்த துறையில் ஈடுபட்டாலும் அதிலே வெற்றி பெற்று விடுகிறார். இதன் காரணம் என்ன? இளைஞர்கள் இடத்திலே கேட்கிறார்கள். மோடி அவர்கள் ஸ்டார்ட் அப் தொடங்குங்கள் என்று சொன்னார், நாங்களும் தொடங்க விரும்புகிறோம், ஆனால் அதானி போல வெற்றி பெறுவது எப்படி என்று கேட்கிறார்கள். पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, முதலில் ஓரிரு துறைகளில் பணிகள் கொண்டிருந்தவர் இப்போது 10 துறைகளுக்கு மேல் ஈடுபட்டு இருக்கிறார். रिन्यूएबल्स, मीडिया,
तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ वेट करो, बेटे, हाँ, धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी सवाल पूछा, कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? कैसे? 2014 2022க்குள் இந்த அதானியினுடைய தொழிலானது $8 பில்லியன் இருந்து $140 பில்லியன் வரை எப்படி உயர்ந்தது என்று கேட்டார்கள். बीजेपी में है ना आप? तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। 2009ஆம் ஆண்டு 609வது இடத்தில் இருந்தார் இவர் உலக பணக்காரர்கள் பட்டியலில். இப்போது 3வது இடத்திற்கு வந்து விட்டார். तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? பெரிய வெற்றி பெற்ற வணிக தலைவராக எப்படி மாறினார் என்று மக்கள் என்னிடத்திலே கேட்டனர். तो जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। पोस्टर माननीय सदस्य, पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर नहीं, प्लीज पोस्टर नहीं है सर। देखिए आप बैठिए, 1 मिनट बैठिए। आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चुकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है। आप बात करें, पोस्टरबाजी नहीं। स्पीकर सर, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, स्पीकर सर, तो पोस्टरबाजी उचित नहीं है। स्पीकर सर, पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज। राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है। चलिए पोस्टर नहीं, प्लीज। वो लिख दे दो मुझे। हाँ, आ गया। Just write it neatly. तो नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसके बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। प्लीज बताइए। ஆகவே இன்று குடியரசுத் தலைவரின் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் இந்த தீர்மானத்தின் போது பேசுகையில் அதானிக்கும் நரேந்திர மோடிக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு என்ன என்பதை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். So the relationship begins many years ago when Narendra இந்த உறவு Modi பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கியது. அப்போது நரேந்திர மோடி அவர்கள் குஜராத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தார். Was asking questions of the prime minister, was against the prime minister. One man stood shoulder to shoulder with the prime minister, didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal
to the Prime இந்தியாவில் இருந்த ஒரே ஒரு வணிகர் மட்டும் முதல்வரின் தோளோடு தோடு நின்று அதற்கு துணை புரிந்தார். அது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. construct the idea of resurgent Gujarat, right? The idea that you bring these businessmen together, குஜராத்தை உருவாக்குவதற்கு மோடி you அவர்கள் bring these businessmen திட்டமிட்டார். together, and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both, and he was the backbone in setting up that group of people. Okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat. Expansion of his business. இந்த குஜராத்தின் வளர்ச்சிக்கு அவர் வணிகர்களை எல்லாம் ஒன்றுபடுத்தினார். அப்போது இவர் தலைமையில், அதானி தலைமையில் இந்த வணிகர்கள் ஒன்றிணைந்தார்கள். The real magic starts. அதனால் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி குஜராத்தில் ஏற்பட்டது. दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है. मैंने कहा 2014 மோடி அவர்கள் பிரதம मंत्रिயாக டெல்லிக்கு வந்தபோது वो 609 नंबर पे थे. मैजिक कुछ ஆரம்பமானது. ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए. तो आपको तो रूल बोल था, नियम था. हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस पे है ये? सर कैसे एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ. ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? बोलिए. ओके प्लीज प्लीज. ओके बोलने दे आपको नेता को. तो बोलने दे आपको कानून नेता रूल को. था, प्लीज बोलने दे. रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था. इस रूल விமான को நிலையங்கள் தொடர்பான பணியில் ஒருவர் இல்லை என்றால் அவர் இந்த விமான நிலையங்கள் தொடர்பான கான்ட்ராக்டுகளை எடுக்க முடியாது என்ற ஒரு விதி இருந்தது. रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात. रूल बदला गया. रूल बदला गया. இந்த விதி அதானிக்காக மாற்றப்பட்டது. मगर एक नहीं मिलता. ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है. ये इंडस्ट्रीज की बात होती है यहाँ पे. जैसे मैंने आपको दिखाया, एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए. वैसे ही डिफेंस में करा. तो 4 डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं. ये काम इन्होंने कभी नहीं किया. स्मॉल आर्म्स, जिसमें टावर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं. நம்முடைய ராணுவம் பயன்படுத்துகின்ற துப்பாக்கிகள் इजराइल அதானி தயாரிக்கிறார். जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए. स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है. इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है. मतलब जो हिंदुस्तान और इजराइल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा का पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है. खत्म कहानी. இஸ்ரேல் இந்தியா இடையேயான ராணுவ தளவாடங்கள் தயாரிப்பு பணியில் तो पता नहीं वहां से क्या எந்தெந்த मतलब पेगासस कैसे आया, பணிகள் எல்லாம் क्या हुआ, தரப்பட்டதோ किसने दिया? அதை அனைத்தும் அதானிக்கே சென்றது. एक और ஆகவே interesting चीज है, இந்தியா இஸ்ரேல் இடையேயான अल्फा தொழில் डिफेंस உறவு என்பது அதானி இஸ்ரேல் தொழில் உறவாகிவிட்டது. एवियोनिक्स का काम करती है और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है. மக்களவையில் ராகுல் காந்தி பேசிய நேரலை காட்சிகளை பார்த்து மேலும் விவரங்களை பின்வரும் செய்திகளில் பார்க்கலாம்.